इक्वालिटी मिलेगा। अभी तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ की हम इक्वालिटी राइट टू वी आर टॉकिंग अबाउट 14 to 18 वी टॉक राइट टू इक्वालिटी बट वी आर टॉकिंग अबाउट 16 नो 16 क्या है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही तो है। आपको मिले हैं मौलिक अधिकार अगर है तो ये अश्योर मेरा क्वेश्चन क्या अश्योर करता है ये आपका मेंटल डेवलपमेंट एश्योर करता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एश्योर करता है फिजिकल डेवलपमेंट एश्योर करता है मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन इज गारंटीड बाय दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल। Against the British imperialism in papers like Maratha and Kesari. So, I would like you to name that person. Are you aware of this? Who tried to save him? But unfortunately, that was a futile attempt on his part. That could not. That was not at all successful attempt. But he tried to save him, and he was. He was having 20 years of bar practice by the time he evolved into a well-known nationalist of Indian subcontinent. Option would be Bhulabhai Desai. Then it was Vittalbhai Patel, M.A. Jinnah, Tej Bahadur Sapru, फिरोज शाह मेहता क्या लगता है कौन होंगे बताइए तो सोचिए बताइए। रजिस्ट्रेशन तो हम लोग का हो गया था ना नेचुरलाइजेशन था नेचुरलाइजेशन में मैंने क्या बोला था क्या लिखने के लिए क्या लिखा था आप लोगों ने मैंने स्टार्ट तो कर नेचुरलाइजेशन तो चल ही रहा था इनफैक्ट ना 12 मंथ्स वाला पार्ट जो था 12 मंथ्स वाला जो पार्ट है इफ द पर्सन रेसाइडेड इन इंडिया फॉर द लास्ट 12 मंथ्स टॉपिक दीजिए नेचुरलाइजेशन सबसे पहले। अगर मान लो जिसमें एप्लीकेशन डाल रहे हैं है ना सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ और पिछले 14 साल में मैं 11 साल भारत में रहा हूँ क्लियर है पिछले 14 साल में मैं 11 साल भारत में रह चुका हूँ और जिस मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ उसका पिछले 12 महीने का पीरियड में ही यहाँ रहा हूँ। 3 कंडीशन है कंडीशन नंबर 1 कंडीशन नंबर 1 क्या है व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1 For the last 14 years, I have resided here in India for not less than 11 years. Clear है? Yes. Then I am eligible to make application. देखो समझो पहली बात है. For the last 14 years, not less than 11 years, I have been residing in India. So that made me eligible to apply for citizenship via naturalization. Clear है? The date on which I am applying for naturalization, the preceding 12 months, I should have resided in India. Clear है? 3 point हो गया. Besides, I am having a good moral character certified by district magistrates or executive magistrate gazetted officers. तो नेचुरलाइजेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोला मैंने पिछले 14 साल में फॉर द लास्ट 14 कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी Okay, little bit. For the last 14 years,
if somebody is residing in India for not less than 11 years, this is point number one, right? That makes him eligible to apply for that citizenship on the basis of naturalization. Clear है? यहाँ तक clear है? And the date on which I am applying for naturalization, preceding 12 months, I should have stayed in India. So that is a point which is qualified enough or fit enough to make me apply for, I can apply for citizenship based on naturalization. बस इतना ही काफ़ी है. ये लिख के दिखाइए तो. Both of you are just on time. Clear है? हाँ, I'm repeating it. Here we are talking of conditions. Here we are discussing the conditions. Conditions of what? Citizenship based on naturalization. Right? So what actually the law says that a person must have stayed in India for a fairly large amount of time. बहुत लंबे समय तक रहा हो. अब लंबे समय का कोई गिनती होना चाहिए ना, लंबे समय की गिनती होनी चाहिए. तो ये बोल रहे हैं कि फॉर द लास्ट 14 years इफ somebody has stayed in India and out of that 14 years 11 years, out of 14 years में 11 साल आप लगातार रह रहे हो, कॉन्टिन्यूअस. क्लियर है? That makes you eligible to apply for that. And the date on which you apply, जिस तिथि को आप अप्लाई करते हो, उसके preceding 12 months, you ordinarily have resided in India. अब इतने सारे कंडीशन फिर सरकार ये बोलती है कि मैं ये भी वेव कर दूंगा. मैं क्या? ये भी वेव ऑफ कर दूंगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट दे दी उस व्यक्ति के बारे में कि he has significantly contributed to the art, literature, culture, science, scientific outlook, scientific development of India, मैं वो भी वेव ऑफ कर दूंगा. उसको मैं दे दूंगा नेचुरलाइजेशन में. क्लियर है? तो सरकार अब बोलेगी, सरकार ये सारा कंडीशन जो आप बता रहे हो कि 14 साल में 11 साल यहाँ रहना चाहिए, प्रेसिडेंट 12 मंथ में अपनी, ये वेव ऑफ किस किस कंडीशन में कर सकते? ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन. So the central government, if central government is willing to give him a certificate in regard to that candidate, that he has ordinarily made contribution, meaningful contribution in the field of art, literature, science, then he may be given citizenship on the basis of naturalization. ये naturalization का है रूल. रजिस्ट्रेशन का क्या था आप बताओ. Sir, he has to be in India for 5 years. Then he can apply for registration. 7 years.
और That's arithmetic column. बताइए, बर्थ में क्या था? किस किस बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, किस किस बेसिस पे सिटीजनशिप मिलता है? Both of his parents are citizens of India. किस किस बेसिस पे मिलता है? Both of his parents are citizens of India, or either of his parents, basically father was a citizen of India. और foreign diplomats का डेट्स इंपॉर्टेंट है सर, डेट्स इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। क्या क्या डेट है? 26 Jan 1950 to July 1982। 1987. 1987, 1 जुलाई 1987, क्लियर है। और 1987 to 2003। Sir, 4 ऑनवर्ड्स, 3 दिसंबर 2004 के बाद से क्या सर्टिफाई किया है? दोनों पेरेंट्स इंडियंस होना चाहिए। Either of the parents are। नहीं, वहाँ पे देखो क्या है, वहाँ पे क्या है, डिसेंट में है वो केस में है, डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि वो बॉर्न आउटसाइड इंडिया है और वो वहाँ के माने इंडियन कंसुलेट आउटसाइड को रिपोर्ट करता है। Within 1 year। क्लियर है? तो यही है डिसेंट में। डिसेंट हो गया, बर्थ हो गया, तीसरा है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? 7 years he has resided in India for 7 years। एक आइदर ऑफ द पेरेंट्स की बात अगर करता है तो बोलता है एक इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, Yes. इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो कितना हो गया कंडीशन? 4 कौन कौन? By birth, by descent, by registration, by national registration, by incorporation of territory। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या हुआ? External। आप बताओ। हाँ, ही वाज सेइंग समथिंग। Like India has acquired some territory that was not earlier the part of the Union of India. If we say like Sikkim was the case in 1976 when India acquired it. So central government is empowered to give citizenship to those people who are residing in that certain area. Not only Sikkim is just one. Case, हाँ, there is also there both the- Goa was also there. Daman Diu, Goa, Pondicherry, which had earlier different settlements. तो उसमें भी आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब यही होता है कि वंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट यूनियन, सो दोज पर्सन हु आर रिसाइडिंग दे विल बी गिवन ऑटोमेटिकली, दे विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। रेनंसिएशन की बात इसमें की गई है क्या? No sir, Article 9। रेनंसिएशन की बात किस में करते हैं हम लोग? Article 9। नहीं, आर्टिकल 9 नहीं, एक्ट में। 1955 Act। बिल्कुल सही। 1955 में हम लोग मोड ऑफ रेनंसिएशन भी करते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 outlines three different ways as to how citizenship is lost. First is renunciation. Second is termination. Third is deprivation. अगर इसमें ये कहा गया कि किसी व्यक्ति ने दूसरे
देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तो इनमें से 3 कैटेगरी में से कौन सा कैटेगरी उसमें अप्लाई होगा? फिर से समझिए, अ पर्सन हु हैज अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, टर्मिनेशन सर वो अपने आप इनवैलिड हो जाएगा ना उसमें। रेनंसिएशन तो वो लिख करके देंगे सर। नहीं, देखिए Announce. that individual starts to give up the citizenship of India. That is the renunciation. नहीं, इस वाले मामले में अगर आपने इंग्लैंड की सदस्यता प्राप्त कर ली, नागरिकता प्राप्त कर ली, तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो लॉस्ट जो होगा, उस किस कैटेगरी में आप उसको कैटेगराइज करेंगे? Sir, it will terminate automatically. तो क्या उसको हम टर्मिनेशन कह सकते हैं? Yes, sir. Yes. नहीं, वो टर्मिनेशन नहीं होगा। वो क्या होगा? Deprivation. सॉरी, वो रेनंसिएशन नहीं होगा, वो टर्मिनेशन होगा। जैसे आप एक्वायर करते हैं किसी का ना, तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, लेकिन रेनंसिएशन में आपको लिख के देना होगा। वॉलंटरली आप नहीं चाह रहे हैं भारत की नागरिकता, दैट इज रेनंसिएशन। टर्मिनेशन का मतलब ही हो गया कि आपने किसी का एक्वायर किया, ऑटोमेटिकली खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन डिप्राइवेशन में नेगेटिव थिंग्स अप्लाई होता है। जैसे इलिसिट ट्रेड में आप चले गए, फ्रॉड कर लिया आपने, कुछ इंफॉर्मेशन लिख के दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, बाद में पता चला कि नोटिस बाद में, इट वॉज ब्रॉट टू द नोटिस लेटर ऑन, इट केम टू लाइट दैट सम fraudulent means was employed or some wrong information to keep somebody in dark, इस तरह का ऐसा कुछ आए, तो वो डिप्राइव कर दिया, वंचित कर दिया गया उसको। क्लियर है? रेनंसिएशन पे आइए। रेनंसिएशन क्या है? पहला रेनंसिएशन क्या बोल रहे हैं? वॉलंटरली कोई आदमी लिख के दिया रहा है कि हमको नहीं चाहिए, लिखिए, पहला लिखिए रेनंसिएशन। व्हेन एन इंडियन सिटीजन डिक्लेयर on his own volition, अपने मन से, on his own volition, VOLITION, when a citizen, Indian citizen, क्या लिखा? Declares on his own volition to renounce, परित्याग करना, to renounce, his citizenship. क्लियर है? अब सेकेंड आइए टर्मिनेशन में। When an Indian citizen voluntarily, consciously, without any pressure, acquires citizenship of another country, his citizenship is automatically terminated or cease to exist. Third is deprivation. Deprivation is equal to compulsory termination. Deprivation is compulsory termination by the union government if an Indian, if के बाद डैश दीजिए और उसके पॉइंट नंबर 1 लिखिए। If an Indian citizenship is obtained by fraud,
Second, if the Indian citizen has displayed disloyalty to the Constitution of India, disloyalty, संविधान के प्रति, ठीक है, डिसलॉयल है, तो सेकेंड वाले का कोई एग्जाम्पल जैसे एक सिंपल सा है, यू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस, राइट, एंड व्हेन यू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस यू हैव टू रीड ओथ ऑफ एफर्मेशन। मैं संविधान, दामोदर दास मोदी संविधान के प्रति अपनी जो ओथ ऑफ एफर्मेशन का जो फॉर्मेट है वो पढ़ लेते हैं आप। सच्ची श्रद्धा के साथ निर्वहन करूंगा अपने कर्तव्य दायित्वों का, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, संविधान से आप सम्मत हो गए, युक्ति संगत हो गए, क्लियर है। अब जो आप काम करेंगे और वो अगर कोई भी ऐसा पाया गया जो कि डिसलॉयल हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में होगा, क्लियर है। वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ना वो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं, मेजर डूज एंड डोंट्स लिखा होता है, ठीक है, विच यू आर नॉट सपोज टू डू इट, विच विल बी ट्रीटेड एज सीरियस मिसकंडक्ट, विच विल बी ट्रीटेड एज सीरियस मिसकंडक्ट, ठीक है, विच ब्रिंग्स बैड नेम टू नॉट ओनली टू द ऑफिस बट टू अ कंट्री एट लार्ज। तो ये सारे काम समझो बात को। तो वो सारे, अब इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं जो कि मान लो कि इंडियन डिप्लोमेट्स होंगे, बिल्कुल सही, इंडियन डिप्लोमेट्स होंगे, इंडियन डिप्लोमेट बिल्कुल आएंगे इसमें, जिसमें कि इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है, वो भी आएंगे इसमें। सर जो कॉमन सिटीजन इस पे भी होता है, कॉमन सिटीजन में हो सकता है आप कोई कहीं के खुफिया तंत्र के घेरे में आ गए और उसके लोभवश कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें। अभी तो एनईटी में देखिए, नीट वाले मामले में धांधली जो हो रही है, तो पता, ये तो इंटरनल मामला है ना। तो चलो कोई अभी तो एक आदमी को दोषी पाया गया, ये तो उसको ले, फिर बोला ये तो गलत आदमी नहीं, ये तो सही आदमी नहीं, दूसरा आदमी है, वो उसको ले रहा है। लेकिन अगर मान लो कि वो तो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाला पार्ट है, तो यहाँ पे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डायरेक्टली लिंक नहीं है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी जघन्य अपराध है, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई ऑफिस में जहाँ की आप जाते हैं और पीपल एट लार्ज का आपको वहाँ पे बिठाया गया है, उनको वोट देके, ठीक है, वोट में क्या डायरेक्टली आप लिंक्ड हैं उसके नीड्स और एस्पिरेशंस पे, हाँ, तो वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्या क्या हो गया इसमें, वे ऑफ लूजिंग में कौन कौन सा पार्ट, तो डिप्राइवेशन में पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, फ्रॉड हो गया पहला, दूसरा क्या हुआ, डिसलॉयल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तीसरा क्या हो गया, इफ समवन इज फाउंड टू इंगेज इन इलिसिट ट्रेड, इलिसिट ट्रेड, इंगेज इन इलिसिट ट्रेड, किसके साथ, विद द एनिमी, ये ध्यान रखना, विद द एनिमी, या इलिसिट ट्रेड या कम्युनिकेशन, किसी भी ऐसा कम्युनिकेशन भी हो विथ एनिमी। अब एनिमी कह लें कि ड्यूरिंग द वॉर, यहां पे डाल दिया ड्यूरिंग दी वॉर, तो वो एक कंडीशन हो जाएगा जिसमें कि आपको डिप्राइव किया जाएगा। सर अगर किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगेंगे तो उसका सिटीजनशिप होता नहीं है, किसी पे अगर सेडिशन के चार्ज लगेगा देशद्रोह का, तो उस पर भी लगेगा, बिल्कुल, उसको सेडिशन का चार्ज, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया उसके ऊपर। नहीं सर वो चेंज हो गया ना, क्या पहले राजद्रोह से देशद्रोह हो गया, नए भारतीय न्याय संहिता में चेंज हो गया ना वो सेडिशन। लेकिन वो चीज़ देखो, यूनिटी और जो है राजद्रोह से देशद्रोह, ठीक है देशद्रोही है,
तो देशद्रोही जब है, देशद्रोही अगर माना गया उसको, इसका मतलब क्या, वो देश के हित का रक्षा किया क्या? नहीं ना, देश के हित का रक्षा तो नहीं किया, वो देश की एकता और अखंडता के विपरीत काम किया ना, प्रतिकूल है वो, ठीक है। तो आप एक ऐसे एंटाइटी हैं जो अच्छा ये ऐसे समझो इसको, सिटीजनशिप लूज क्यों होता है, क्या कारण है? कोई अपना नागरिकता करके, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम करता है देने के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप के मामले में अल्टीमेटली नो सुप्रीम कोर्ट नो हाई कोर्ट, उसमें सबसे बड़ा जनता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, गृह मंत्रालय का। तो गृह मंत्रालय, इसीलिए अभी CAA और इस सब में गृह मंत्री ही इसमें थे इम्पॉर्टेंट। तो गृह मंत्री अपॉन द रिपोर्ट, उनके इंटरनल रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये जो लड़का है ये कोई व्यक्ति टेररिस्ट है, बहुत दिन से अपना हुलिया छुपाए हुए यहाँ पे रह रहा था, बाद में पता चला, तो उसको लॉ ऑफ द लैंड फिर उसको डील करता है। क्लियर है? लेकिन मान लो कि कोई ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब देखो सियालकोट वाले इंसिडेंट में एक IPS ऑफिसर इन्वॉल्व था, इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहा था। जो एयर स्ट्राइक्स हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक्स, सॉरी बालाकोट स्ट्राइक्स के पहले, तो एक IPS ऑफिसर इन्वॉल्व था, वहाँ के पाकिस्तान के एजेंसी से मिला हुआ था, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में चलाया गया। तो ये दिस इज़ quite natural that a person whom we repose faith on, and if he does anything in contravention to that, so he'll be charged with that as good as is applied to any ordinary citizen. The right to equality यही तो है, right to equality किसी को तो कहते हैं, तो whether you are normal citizen or you are holding any public office, in applying law there shall not be any discrimination. Equal should be treated equally and unequal should be treated unequally. Clear? तो टर्मिनेशन क्लियर हो गया, टर्मिनेशन का पार्ट। अगर ऑप्शन में आएगा तो टर्मिनेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना? यस सर। क्लियर है? यस। अच्छा, मोड ऑफ एक्विजिशन भी हो जाएगा। कितने कितने आप बताओ, मोड ऑफ एक्विजिशन और मोड ऑफ टर्मिनेशन में कोई दिक्कत है? बताओ मोड ऑफ एक्विजिशन क्या क्या है। तो तुमने अटेंड नहीं किया, तुम बताओ, तुम मोड ऑफ एक्विजिशन और मोड ऑफ पूरा में सब 5 तरीके से सब एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय नेशनलाइजेशन, फोर्थ लास्ट वाला क्या सर? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, सिंपल है। एंड जो लूजिंग ऑफ सिटीजनशिप है, टर्मिनेशन का, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन से। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ओनली टू सिटीजन्स, आप बताइए। क्या सिटीजनशिप या सिटीजन डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? सिटीजन नहीं डिफाइंड है। वेरी गुड। सिटीजन्स, क्या सिटीजनशिप डिफाइंड है? It is not defined in Constitution, but is defined in the Citizenship Act 1957. एक्ट में डिफाइंड है, संविधान में डिफाइंड नहीं है। क्लियर? Sir, I have one question. This Act, the Citizenship Act 1955, the scope of this Act is limited to the citizenship acquired with naturalization. Am I right, sir? The scope of this Act is limited to the citizenship acquired with naturalization. नहीं, Citizenship Act 1955 lays down or stipulates that there are different methodologies of acquiring citizenship. Citizenship, इंडियन सिटीजनशिप किस किस तरीके से लोग लेते हैं, क्लियर है? तो पहला है बाय बर्थ। क्या इसका मेंशन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में है? बिल्कुल है। दूसरा है बाय डिसेंट, क्लियर है? बर्थ का मतलब जो इज बॉर्न इन इंडिया, लेकिन जब डिसेंट की चर्चा कर रहे हैं हु इज बॉर्न आउटसाइड इंडिया, क्लियर है? अब ये दोनों में भी नहीं है, हमें रजिस्ट्रेशन से कर जाना चाह रहे हैं।
दूसरा नेचुरलाइजेशन से आ रहे हैं, हम इतने समय तक यहाँ रह रहे हैं, तो सरकार बोल रही है कि इतने समय से अगर आप रह रहे हैं तो आप करते हैं। उस पर भी सरकार ये बोली ये भी वेव कर सकते हैं कंडीशंस, अगर आप आई कैन वेव दिस ऑल कंडीशन इफ द पर्सन who is being referred to has made significant contribution in the field, different field, art है, literature है, science है, तो हम उसको दे देंगे। Gradually he will be an Indian citizen। क्लियर है। दूसरा लास्ट तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है ही। तो ये सारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 से लिया गया है, क्योंकि मोड ऑफ एक्विजिशन और मोड ऑफ टर्मिनेशन किसी आर्टिकल में व्यक्त नहीं है, ये ध्यान देंगे। आर्टिकल 9 ये मोड नहीं है, ये डेट्स इतने समय से वो ऑर्डिनरी रह रहा हो, इसके बाद वो माने जाएंगे, उसके बाद वो तिथि बदल जाती है, ये सब एक्ट आर्टिकल में नहीं है, ये सब एक्ट में है। आर्टिकल 9 that talks about the termination of citizenship if anybody acquires citizenship of other country। 5 से 11 सिटीजनशिप ही है, 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप, बट द टेक्निकलिटीज, ठीक है, और टेक्निकलिटीज ऑर्डिनरी फॉर व्हाट नंबर ऑफ ईयर्स यू आर रिसाइडिंग इन इंडिया, व्हाट आर डिफरेंट कंडीशंस, अब ये कंडीशन में वेव ऑफ किया, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकते, ये सारा चीज़ नहीं है इसमें, ये सारा एक्ट डिफाइन करता है, ये ध्यान देंगे। आर्टिकल में सिर्फ जनरल बातें दी गई हैं, एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल सी बात है, एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? आर्टिकल 5 से 11 दे ही रहा था नागरिकता की, एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? एक्ट को हम लोग इजीली उसमें चेंजेस ला सकते हैं ना, और वो तो चेंजेस लाए भी हैं हम लोग। लिख लीजिए कौन कौन सा चेंजेस लाए हैं 1955 में। लिखिए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 was subsequently amended in 1986, in 1992, in 2003, Can you go slow? in 2003, Can you go a little slower? 86, 1986, 1992, 2003, 2005 and 2020। अब आइए देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2019 के बारे में लिखिए। 2019 2020 एक्ट 2019, सिटीजनशिप एक्ट इज 2019। इसमें जो हंगामा होता है उसी के बारे में, CAA दैट वाज पास्ड, लिखिए, ऑन December 11, 2019। but actually came into force from January 10, 2020. So passed in December 11, 2019. अब इसमें क्या चेंज आया था वो लिखेंगे ना, लिखिए। सर लेकिन ये तो पास अभी हुआ है ना सर, ये 3-4 महीने पहले। it is notified। नहीं 19 की बात कर रहे हैं, जो 19 में 2019 में दिसंबर में आया और लागू हुआ 2020 में, उसकी बात कर रहे हैं पहले। 10th of क्लियर है? फिर अभी क्या होगा सर? गजट नोटिफिकेशन अभी फिर बाद में चेंजेस हुआ है, तो 2020 वाला लिख लीजिए पहले। इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 by providing a pathway to Indian citizenship for persecuted religious minorities
from Afghanistan, comma Bangladesh and Pakistan. Who are Hindus, इसमें जो हिंदू हैं, कॉमा सिख्स, कॉमा बुद्धिस्ट, कॉमा जैन्स, कॉमा पारसीज और क्रिश्चियंस, comma and arrived in India before the end of December 2014. अब इसका मतलब क्या हुआ? जितने देश का उल्लेख किया गया है उतने देश के जो माइग्रेंट्स हैं वो दिसंबर 2014 से पहले, ख़त्म होने से पहले यहाँ पे आ चुके थे और वो रिलीजियस परसिक्यूशन कहाँ हुआ? वहाँ हुआ, तो वहाँ से भागे। क्लियर है? तो उनको भी एक रास्ता मिला कि यहाँ पे हम नागरिकता हम उनको दे देंगे। तो ये 2014 की रखी हुई है। 2014 मतलब वो डेट क्यों रखी हुई है? कि 2014 से हाँ 2014 तक वो क्या पूरा एंड तो नहीं कर सकते हैं ना, ओपन तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी एक समय सीमा होगा ना कि उस समय तक आएंगे यहाँ पे उनको नागरिकता वो लोग। अब एनआरसी में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में देखा गया कि बहुत सारे जो हैं उसके अलावा भी बहुत सारा, तो पता चला कि कौन लोग हैं आखिर। तो ये पता चला ये लोग तो वहाँ से जो आए हैं यहाँ पे, वहाँ से शरणार्थी हैं। ठीक है, तो इन लोगों को के लिए व्यवस्था किया गया। अब ये किस में व्यवस्था किया? CAA में 2019, जो कि अस्तित्व में कब आया? 2020 में। इसीलिए मैंने वहाँ पे क्या लिखा है? 2020 में। क्लियर है? 2020 वाला है। ठीक है, क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिखेंगे आप, इसमें पहली बार रिलीजन शब्द का लिखिए, दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम the word religion, the act has used the word religion for the first time as a criterion for citizenship. क्लियर है? पहली बार धर्म के आधार पर पहली बार नागरिकता देने के क्रम में अगर कभी भी जिक्र हुआ है तो वह 2019 वाले एक्ट में हुआ है। क्लियर है? अब आइए OCI पे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। In 2000, Ministry of External Affairs under the chairmanship of L.M. Singhvi set up a high-level committee At the chairmanship of L.M. Singhvi, लक्ष्मीमल सिंघवी। आप लोग अभिषेक मनु सिंघवी को जानते हैं? कांग्रेस के बहुत बड़े एक्सपोज पर्सन है और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट। तो उन्हीं के पिताजी हैं लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, ये हाई कमिश्नर थे, IFS थे। तो लक्ष्मीमल सिंघवी सेटअप अ हाई लेवल कमिटी ऑन इंडियन डायस्पोरा
अब रिकमेंडेशन लिखिए, द कमिटी रिकमेंडेड द अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 to provide a dual citizenship to persons of Indian origin, PIO. ठीक है, एनआरआई की तरफ से ये डिमांड कई बार उठी है सर। फिर लिखिए नेक्स्ट में, in 2015, sorry, in 2003, acquisition of OCI by the PIOs of 16 specified countries other than Pakistan and Bangladesh. And in 2015, the Citizenship Act got amended by introducing a new scheme called OCI card holder. By merging OCI and PIO. अब सिंपल सी बात है कि PIO और OCI में बहुत कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। इस एक्ट में इसके फेवर में ये आया, उस एक्ट में इसके, तो इन दोनों को कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए अब PIO को डिमोलिश करके OCI कार्ड होल्डर कर दिया। तो एज ऑन डेट PIO डजंट एग्जिस्ट, व्हाट एग्जिस्ट इज OCI कार्ड होल्डर। क्लियर है? एक और पॉइंट लिखिए, any person of full age and capacity, any person of full age and capacity who is a citizen of other country, another country, but was a citizen of India, at the time of the commencement of the Constitution. Or was eligible to become a citizen of India. Or belonged to a territory
that became part of India, after 15th August 1947. Can be registered as OCI card holder. तो इसमें कंडीशन बन गया भाई, फॉरेन में फॉरेन सिटीजनशिप है, लेकिन जब 1950 में संविधान लागू हो रहा था उसमें उसकी सदस्यता, नागरिकता कहाँ की थी? भारत की थी। क्लियर है? या वो एलिजिबल है इंडियन सिटीजनशिप का लेने के लिए, तो ऐसे सब कंडीशन में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कि OCI कार्ड होल्डर उसको आराम से दे जाएगी। ठीक है, और इसको दे दिया, बना दिया गया OCI कार्ड होल्डर। क्लियर है? एक बार देख लीजिए अपने नोट्स को, फिर चलेंगे क्या क्या अधिकार दिए गए हमने, कौन कौन से अधिकार मिले हैं OCI कार्ड होल्डर को, क्या क्या अधिकार प्राप्त है भारत में। लिखिए, पहले आप एक बार नोट चेक करिए, फिर लिखेंगे हम लोग राइट्स ऑफ OCI कार्ड होल्डर। सर क्वेश्चन है सर। हाँ सर, ये जो दो प्रोसेस है अक्विजिशन का, सिटीजनशिप का अक्विजिशन का सर, कि जैसे बाई रजिस्ट्रेशन आपको 7 इयर्स तक रिसाइड करना है इंडिया में, और बाई नेशनलाइजेशन है कि 14 इयर्स में 11 इयर्स में पूरा है। तो अगर पहला वाला क्राइटेरिया अगर लगा हुआ है सर कि 7 इयर्स हम यहाँ डिसाइड कर ही गए हैं, तो फिर दूसरे क्राइटेरिया की ज़रूरत ही कहाँ है सर? अगर कोई 7 साल रह गया तो बाई रजिस्ट्रेशन ही वो इंडियन सिटीजनशिप ले लेगा, उसको फिर बाई नेशनलाइजेशन का एक अलग कॉलम बनाने की और उसको इतना इंट्रिकेट करने की ज़रूरत क्या है सर? देखो, 7 साल रहेगा तो उसी से ले लेंगे, 14 साल रहने की क्या ज़रूरत है? कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे, जैसे अब देखिए, जब आप पब्लिक ऑफिस के लिए फाइट करते हैं या कुछ ऐसे, कहाँ कहाँ अंतर हो जाता है। एक बाय बर्थ जिसको मिला है वही कर सकता है, बात समझ रहे हो? वहाँ पे अंतर होती है। तो जो उसको मिलेगा तो उसके बाद क्या क्या चीज़ उसके लिए, हम ये पढ़ रहे हैं, राइट्स पढ़ रहे हैं इसके लिए ना, सदस्यता तो इसको भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं, तो वहाँ डिफर करता है। क्लियर है? एक दूसरा, जैसे मानिए 7 साल वाला पीरियड है आपका, चल ही रहा है, उसमें जब रजिस्ट्रेशन में नेचुरलाइजेशन क्यों करेंगे? ठीक है, वो व्यक्ति जो आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में अच्छा कर रहा है, तो उसको कंडीशन तो वेव ऑफ हो जाएगा उसके लिए ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन से नहीं मिलेगा, उसको किससे मिलेगा? नेचुरलाइजेशन से मिलेगा। समझ में आया? हाँ बताइए आप। सर, कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हनी ट्रैपिंग की वजह से बहुत सारे जो चाहे मिलिट्री पर्सनल्स ले लें या कोई भी कॉमनर ले लें, उनको कई बार तो जॉब से निकाल दिया जाता है और उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। कब? सरकारी जॉब के उन्होंने? हाँ, या गवर्नमेंट जॉब में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जैसे हनी ट्रैप में आ जाता है, और सीरियस जो किसमें हनी ट्रैपिंग आती है, जैसे पाकिस्तान से कोई कॉल आई और अच्छा, हाँ केस में आ गया, हाँ। और कोई एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है वहाँ से, तो उसके भी आप उनकी सिटीजनशिप भी अगर रद्द कर दे तो बदल दे, मैंने पाकिस्तान का सिटीजनशिप ले लेते हो, मतलब इंडियन सिटीजनशिप तो हम टर्मिनेट कर ही सकते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? मतलब फिर उनको छोड़ भी देती है। नहीं, उस पर तो फिर ट्रायल चलेगा अभी उसके ऊपर, उसको कैसे छोड़ देगी इतना आसानी से? नहीं, प्रोसीडिंग तो आप पूरा करिए, बट बाद में जब सब कुछ हो जाए उसके बाद फिर तो कर ही सकते हैं सर वैसे। अब जब वो सज़ा भुगत लिया, ठीक है, या तो जैसे जो कि एक ऐसे समझ लो एग्जाम्पल, मुझे जो प्रतीत हो रहा है वो ये कि डबल जियोपार्डी तो लगेगा नहीं उसके ऊपर, डबल जियोपार्डी तो लगेगा नहीं, एक बार अगर उसने ये कर लिया है तो दोबारा लगेगा नहीं। ठीक है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में सज़ा भुगत रहे हैं, अल्टीमेटली फैसला सुना चुकी है सरकार,
तो आपको एक सुधरने का मौका दिया गया, इम्प्रूवमेंट का एक मौका दिया गया है कि अगर आप ऐसा करो। ये तो लॉ में लिखा हुआ है ऐसा ना, अल्टीमेटली जो लॉ में लिखा हुआ है अंडर कंसेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। लॉ को या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका संचालन राज्य व्यवस्था पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। ये तो अंडर द इम्प्रेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, if it finds that there is sufficient scope for bringing improvement in that person and he could be productive to the Indian soil, इस कारण से तो सर भी आज तक भी ऐसा केस नहीं हुआ जो भी इस केसेस में नॉन रिटर्निंग सिटीजनशिप हाँ को टर्मिनेट किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। केस नहीं है इसकी केस नहीं। तो जैसे ये ऑलरेडी ये डिपेंड करता है कि किस किस तरह का क्या लॉस वो दिया होगा, उसके कृत्य से, उसके एक्शन से सरकार को या देश को किस हद तक क्या लॉस हुआ होगा। क्लियर है? तो इस अगर वैसा है कि कोई चांस ही नहीं है इसको सुधारने का, तो हम इसको कह सकते हैं नो राइट टू स्टे इन इंडिया। ठीक है, वी कैन डिप्राइव हिम ऑफ द सिटीजनशिप, वी हैव गॉट इनफ स्कोप हियर एंड बाय वे ऑफ डिप्राइवेशन। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस। क्यों इतना न्यूज़ में था? It was implemented in Assam. असम में क्या जरूरत पड़ गई इसकी? इतना 47 illegal immigrants. इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्याज कहाँ के हैं आप बताओ? बर्मा बोलने से काफ़ी हो जाएगा। रखाइन ठीक है, बर्मा हैं। एक्चुअली बर्मा में भी जो अराकन माउंटेन्स है ना, तो उसके तरफ में वो कम्युनिटी है। रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार। हाँ, तो जो आती रही यहाँ इन भारत में। और उसका सबसे ज़्यादा कॉन्ग्लोमरेशन किस स्टेट में हुआ है? West Bengal. वेस्ट बंगाल में हुआ है। सबसे ज़्यादा उसका जो हुआ है वेस्ट बंगाल अफेक्टेड ज़्यादा है उससे, बंगाल से। त्रिपुरा भी है, Yes, yes. Northeast. त्रिपुरा भी है। चलिए लिखिए इसके बारे में, एनआरसी के बारे में लिख लीजिए। Rights of OCI card holder. Rights of OCI card holder. राइट टू, Rights of OCI card holder. अच्छा हाँ राइट हो गया, लिखिए। He shall not be entitled to right of equality of opportunity. He shall not be Entitled to equality of opportunity in the matters of public employment. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब public- आर्टिकल 16 उसको सरकारी सेवा मिलेगी उसको। लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब गवर्नमेंट जॉब है। विल ही बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट? लिखिए, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। विल ही बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट, नाइदर प्रेसिडेंट नॉर वाइस प्रेसिडेंट नॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अच्छा, एंटाइटल्ड एज ए वोटर, Yes, sir. नो सर। he will not be entitled as a voter. लिख लीजिए, he will not be entitled to register as a voter. राज्यसभा मेंबरशिप नो। विधान परिषद का पार्षद बन सकता है? नो। किसी भी स्टेट या यूपीएससी के अंदर जो जॉब्स है वो ले सकता है? नो। सर मिलेगा क्या? टॉपिक है राइट्स ऑफ OCI कार्ड होल्डर, इसमें तो सब कुछ मना ही कर रहे हैं। आर्टिकल 32 इनको मिलेगा सर।
क्या क्या मिलना चाहिए बताओ? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मिलेगा सर। राइट टू इक्वालिटी मिलेगा। अभी जो राइट टू इक्वालिटी कहाँ की हम इक्वालिटी राइट टू वी आर टॉकिंग अबाउट 14 to 18 वी टॉक अबाउट राइट टू इक्वालिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 16. नो 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही तो है, तो वो तो डिनाई हो रहा है इसको, तो राइट टू इक्वालिटी कहाँ मिला इसको? 15 मिलेगा, 15 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है 15 है। 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये क्या है? ये सिर्फ नागरिक को मिले हैं, सिटीजन्स को मिला है। अब इसमें देखो कि 15, 16, 19, 29 में क्या वो स्कोप है इसका? 15 मिले, 15 है, 15 तो है, 15 ठीक है। तो ये तो OCI ओवरसीज सिटीजन, ऐसे तो सिटीजन ही है ना, लेकिन ओवरसीज है, तो इसमें आपको 14 का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये 14 इसको मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, 16 नहीं मिलेगा। 15 का क्या मतलब होता है? हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ठीक है। लेकिन 16 तो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा है। सर 15, 16, 19, 29 और 30 ये तो ये नहीं, ये मैंने बताया कि ये सिर्फ सिटीजन को मिल रहे हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 यहाँ पे एलियंस और सिटीजन्स की में, ये तो ना तो एलियंस है ना फुल फ्लेज सिटीजन्स है। आप समझो बात को, ये ना तो एलियंस हैं और ना ही फुल फ्लेजेड सिटीजन्स हैं। इनको तो एक व्यवस्था के तहत यहाँ पे लाया गया है, और इसका मेन पर्पस ये है कि अगर आप प्रोडक्टिव वहाँ हो तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन सॉइल में फ़ायदा होगा आपके उस नॉलेज का, या फिर आप अपने प्रोडक्टिविटी जनरेट, ये इसके लिए इसलिए इनको लाया गया है। नेक्स्ट लिखिए, क्या क्या लिखा? 14, 15 सर। अब तो यहां तक में बताए हुई चीजों में कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई 6 कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, 6 कम्युनिटीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। लिखिए उसके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सिटीजनशिप एक्ट 2019 exempts the members of the 6 communities from any criminal case under Foreigners Act 1946. The 6 communities sir. From any criminal case. From any criminal case under the Foreigners Act 1946. And the Passport Act 1920. इसका मतलब क्या हुआ? पासपोर्ट एक्ट 1920। अब ये जो 6 कम्युनिटी की बात हमने की थी, किस किस का बात किया था? अभी जो लिखवाया है, जैन्स है, पारसीज है, बुद्धिस्ट है। अगर इनका जो एंट्री हुआ यहाँ इंडिया में, अगर इनका कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ था जो कि उसको बाधित कर सकता था, तो ये एक्ट उसको भी एग्जेम्प्ट करता है। यानी कि अगर उसमें परसिक्यूट, रिलीजियस परसिक्यूशन का मतलब क्या हुआ? उस पर चार्ज लगाया गया, तो इस चार्ज से उसको वेव ऑफ करके एक पाथवे बनाया कि इंडियन सिटीजन फिर भी आपको दिया जाएगा। क्लियर है? इवन क्रिमिनल एक्ट ऑल्सो, अगर ऑप्शन में वहाँ पे होगा कि इवन इफ दे आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज देन ऑल्सो दे विल बी इन इंडियन सॉइल, दे विल बी गिवन सिटीजनशिप। यस, दे विल बी गिवन।
इट इज एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड इन द एक्ट, दैट इज योर 2019 एक्ट, ये ध्यान रखेंगे। सर लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है सर, क्योंकि किसी और को जब हम सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं तो लॉ में ही पढ़ रहे थे सर कि अगर किसी को हम सिटीजनशिप दिए और 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लग भी जाता है तो हम उस सिटीजनशिप उससे वापस छीन लेंगे। एक तरफ वो लॉ है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर आपके ऊपर पहले से चार्ज लगा हुआ है तो हम आपको ऑन द ग्राउंड ऑफ चार्जेस लगा हुआ है, क्रिमिनल चार्जेस किस 2 एक्ट के तहत? ये 2 एक्ट के तहत अगर चार्ज लगा हुआ है, क्रिमिनल जो एक्ट है, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ है, अगर उस एक्शन में डिफाइंड है, वो है किसमें? इंडियन पासपोर्ट्स एक्ट में और फॉरेनर्स एक्ट में। इस एक्ट में अगर कोई आपका एक्शन ऑफेंस की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, साफ साफ लिखा गया है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके बावजूद भी हम आपको इतना भारत उदार है, लिबरल है कि आपको हम सिटीजन दे रहे हैं। तो एनडीए की सरकार है तो अब मिलना ही चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देख लीजिए एक बार स्टूडेंट्स, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। अगर OCI यहाँ पे ज़मीन खरीद के प्लांटेशन करना चाहता है तो कर सकता है। नहीं सर, नहीं सर। यस सर, कर सकता है। कर सकता है तो क्यों नहीं करते? OCI फॉरेनर्स को जब अगर- तो OCI को क्यों नहीं मिलेगा सर? अगर माउंटेनियरिंग के लिए ट्रैकिंग पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता जा सकता है। ले सकते हैं। सर उन्हें बेसिकली पॉलिटिकल राइट से डिबार किया गया है। वहाँ कोई रिसर्च कर सकता है, मिशनरीज रिसर्च बिल्कुल कर सकता है। तो ये लिख लीजिए क्या क्या चीज़ वो लोग कर सकता है, तो आपको ये समझ में आएगा। They have been given, actually they have been given all rights in parity with NRIs, बस। FR में क्या क्या पढ़े आप लोग? कल के क्वेश्चंस में जो जितना डिस्कशन हुआ है क्वेश्चन कल, उसमें कोई दिक्कत है? पक्का? कौन कौन डिस्कशन में नहीं थे कल? मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन थे। अच्छा, आप नहीं थे। आपने क्वेश्चन चेक किया कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको भेजा गया था क्या? वो आंसर नहीं, आंसर की भेजा गया नहीं? मिला आपको आंसर की? ले लीजिएगा आंसर की, आप भी ले लीजिएगा। आप थे कल तो आप टेस्ट पेपर ले लीजिएगा। मिल गया? कितने FR हैं फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? कौन कौन? एक बार लिख के दिखाइए तो कि ये बेसिक क्वेश्चन है, कितने फंडामेंटल राइट्स इंडिया में हैं?
कौन कौन सा लिखा आपने, बताइए। Right to equality 14 to 18, right to freedom 19 to 22, right against exploitation 23-22, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational right 29 to 30, and right to constitutional relief 31. What about right to property? Sir, it has been shifted to the other part of आर्टिकल 300A पार्ट 2 में 44th constitutional amendment. तो ये अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, फंडामेंटल राइट्स। It's a legal right. Legal right. लीगल राइट किस सिटीजन्स को ही मिलना चाहिए या सभी को? Sir, basically it's सभी को shifted to the other part of the constitution, so it is open to the other alien citizens also. एलियंस ऑल्सो। लिख लिया आपने? यस सर। Why fundamental right is called fundamental? Because it is given by the constitution. बेसिक ये बंद है कैसे? बंद, गर्मी लग रहा है। सर उसे पानी गिर रहा था इसलिए बंद कर दिया। बंद कर, हमेशा कर, ऑन कर दो फैन। हरे राम। But also आप लोगों को गर्मी नहीं लग रहा है क्या? फंडामेंटल राइट क्या क्या चीज एश्योर्ड करता है? व्हाट इट एश्योर्स? Sir, it assures the rights to both citizens and non-citizens. नहीं, व्हाट इट एश्योर, अगर मौलिक अधिकार हमको संविधान द्वारा प्रदत्त है, इफ आई एम बेस्टोर्ड विद द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो व्हाट इट एश्योर्स, व्हाट इट गारंटीज? So it guarantees equal protection of law. These rights will be protected And these are like constitutional rights which are given by the constitution. तो नहीं, that is okay. These are, you are defining right. I'm not asking to define right. I'm asking what are the benefits of having fundamental right. person can have a dignified life. Very good. यहाँ ये ठीक है, गरिमामय जीवन और that it assures against the autocratic nature of the So government. it नहीं, provides it justice. doesn't assures, ये देखो, it doesn't assure करने का मतलब ये गलत हो गया ना। इसके रहने से आप ये स्टेट ऑटोक्रेटिक है ये थोड़ी माने हैं। No, I am saying sir, it assures against the tyranny of the state. That it prevents state to take any action हाँ to violate the fundamental right that is inscribed in the constitution. हाँ So it limits the government. It limits the government. And okay, it limits the government, that I understand. What I'm saying is, if it is not there in the Constitution of India, what would have happened to the citizens? And mentioning of it, or the presence of this in the Constitution of India, what benefit is getting accrued to the citizens? Government would have become totalitarian, sir. Protection. just नहीं, Autocratic rule. talk of about citizens. इसके आने से क्या फायदा हो गया? If any of the rights is violated, then the citizen can directly approach. to Oh, the- that is okay. What I'm saying is, what benefit? If it is not there, what hinders the development? बेसिक लाइफ आराम से बेसिक लाइफ मेंटेन कर सकते हैं सिटीजन्स। नहीं, देखो यहाँ पे आपको बोलना होगा कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं, मौलिक अधिकार अगर है, तो ये अश्योर, मेरा क्वेश्चन क्या अश्योर करता है? ये आपका मेंटल डेवलपमेंट एश्योर करता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एश्योर करता है, फिजिकल डेवलपमेंट एश्योर करता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन इज गारंटीड बाय, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल। फंडामेंटल कहने का मतलब ही यही है, क्लियर है? तो व्हाई दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल लिख लीजिए।
सबसे पहले it guarantees the physical, mental, moral and intellectual development of citizens. It guarantees क्या क्या लिखा? मेंटल, फिजिकल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स. ये सबसे पहला पॉइंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल. क्लियर है? अब ये कौन से पार्ट में इसका उल्लेख है? पार्ट 3. इट इज एंश्राइंड इन पार्ट 3. फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल? फंडामेंटल राइट्स जो एंश्राइंड है वो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर है 12 से 35 के बीच में ना. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लियर है? तो 12 to 35 ये पूरा चैप्टर है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो एंश्राइंड है वो 14 से 32 तक है. क्लियर है? आपका ओपिनियन क्या है फंडामेंटल राइट्स के बारे में? आप नए आगंतुक हैं, तो मैं सोचा थोड़ा आपसे जिक्र किया जाए. नहीं, वो नहीं, मैं उससे नहीं. FR फंडामेंटल राइट्स तो सुने होंगे ना. मैं कुछ पूछने, जानकारी हासिल करने के लिए नहीं, जब आप जानते नहीं जानते. आपका ओपिनियन क्या है? मौलिक अधिकार जो संविधान ने जो नागरिकों को दिया है, मौलिक अधिकार, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है. तो विषय माध्यम क्या, हिंदी है कि अंग्रेजी? इंग्लिश है. सो टू व्हाट एक्सटेंट यू फील दैट इफ दे आर गारंटीड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, they generally affect the, if they are not given, how they are affecting the moral development, how they are affecting the intellectual development? Sir, I don't have any idea about this. Okay. Yes, anyone? I'm saying, बस सर आपने लिखा तो दिया कि it guarantees your moral development, लेकिन ये कैसे आप प्रूव करेंगे इसको? By the rights vested in these articles. Like if we talk about cultural and educational rights, it is for the minorities. Yes. So the constitution is assuring that no one is left right, and even the minorities are getting the right amount of education which is required for their development. So we can give this example. Very good. Then if we talk about to the extent, यहाँ पे तुमको ऐड कर दो कि to the extent they are supposed to and they are very much protected to ensure that their language, their script, their culture is totally intact. And law has not provided any such means which by means of interference, undue interference, is going to affect their originality in any such whatsoever it may be. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बताओ कि मौलिक अधिकार 78 में कौन सा अधिकार को हटा दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को किस सरकार ने हटाया था? क्यों हटाए थे? अच्छा ये बताओ, संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया? हम बोले कि इसको हटा दो, इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी हटा सकता था. हाँ, थोड़ा डीप में जाएंगे. ये जो बोली सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मुझे समझ में नहीं आया, बताइए तो. पता नहीं सर. हाँ ये बता देंगे, इनको पता है. सर अगर राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट होता, वेरी गुड, स्टेट को वो एनफोर्सेबल करना पड़ता है इन फेवर ऑफ द सिटीजन. हाँ, अगर लीगल राइट है तो वो एक ऑप्शन है उसके पास. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आप समझे क्या? अगर आपका राज्य समाजवाद है तो इसका मतलब स्टेट की भूमिका है वहाँ पे. स्टेट चाहेगा तो ये ज़मीन है, यहाँ से रोड बना देगा, हॉस्पिटल बना देगा, डेवलपमेंट के लिए करेगा गवर्नमेंट. लेकिन जब ये आपका फंडामेंटल राइट्स था तो आप डिनाई कर सकते थे. लेकिन 72 में जब शब्द आ गया
76 में 42nd अमेंडमेंट में जब ये शब्द आ गया सोशलिस्ट, जिसको कि अवधि सेशन ऑफ कांग्रेस में हम लोग गारंटी किए थे, तो वो जब आ गया तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी बोथ कैन नॉट को एग्जिस्ट, आइदर देम टू सेपरेट। तो एक आ गया प्रियम्बल में और दूसरा चला गया लीगल राइट में। क्लियर है? सर एक और भी इस पे हाँ। हो सकता है। बताओ बताओ। अगर मेरे पास फंडामेंटल राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी और मेरे पास जमीन है नहीं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, सर मुझे जमीन नहीं है और मुझे सरकार की तरफ से मुझे जमीन मिलनी चाहिए, तो ये भी तो एक केस हो सकता है, तो गवर्नमेंट के लिए भी एक बर्डन हो जाता है। देखिए उसमें एक चीज़ और है, ये बात तब है जब आपके पास जमीन है, उसका अधिकार है, यानी कि आपसे छीनेगा कब? छीनने वाला कौन है? राज्य छीनेगा ना, लेगा अपने, मैंने कि लेना, छीनना नहीं, लेना, अक्वायर किया आपसे, तो वो तो तब होगा जब आपका है ही नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सर ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मेरे पास जमीन होनी चाहिए। हाँ, वो फंडामेंटल राइट जमीन होनी चाहिए, लेकिन वो भी है अगर मेरे इक्वालिटी को कोई हिंडर करता है, then I directly go to the Supreme Court to reclaim। नहीं तो आप अदानी के पास लाखों करोड़ों एकड़ संपत्ति है, तो आप बोलिएगा हम भी बराबर होंगे उसके, तो हमको भी लाख एकड़ का दे दे संपत्ति वाला, तो ये बात कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं आप? ये अगर ये हो सकता है, मान लीजिए फलाने भाई साहब के पास, इनके पास 100 एकड़ जमीन है, आपके पास 1 एकड़ भी नहीं है, आप इनके बराबर ट्रीट कर रहे हो, बोल संविधान में दोनों बराबर हैं, तो हमें भी 100 एकड़ होना चाहिए, ये बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, हम कुछ आपका 0 है बोल तो रहे हैं, इनके पास 100 है, मैं चाहता हूँ मुझे भी 1 एकड़ भी मिले, लेकिन मिले। हाँ, तो फंडामेंटल राइट सर, इसलिए नहीं क्यों एकड़ देगा सरकार, क्यों देगी? फंडामेंटल राइट है, मैं इस बात पे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है सर। हाँ हाँ जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब डाला गया था, हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फ्रेम हुई, जब संविधान पारित हुआ, तो उसमें यह था, तो जब वो वहाँ से हटा तब सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों रहा? अल्टीमेटली सर जहाँ पे बोलना है वहाँ पे तो बोलता नहीं है। अगर उसको हटाने की ज़रूरत क्यों क्या है सर? ये पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके दिमाग में ये पॉइंट नहीं गया होगा कि इसको हटाएंगे, कल होकर के ये प्रॉब्लम सरकार के लिए आएगी। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, सो अमेंडमेंट की जा सकती है इसमें। अभी तो अमेंडमेंट के लिए प्रोविजन दिया, इसीलिए तो उन्होंने रिजिड नहीं बनाया उसको। सर अमेंडमेंट का प्रावधान नहीं, इनका कहना एक दूसरा डायमेंशन है कि वो तो चेंजेस लाने के लिए बात, चेंजेस नहीं Changes लाने की जरूरत है सर। क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जहन में इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा पॉइंट छूट सकता है? वही डाल देते इसको लीगल प्रोविजन में, लीगल एक्ट में डाल देते सर, वो फंडामेंटल राइट में क्यों डाल? एक्चुअली देखो उसमें क्या हुआ, वहाँ पे वो वाला जवाब मेरा ये है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया, 9th शेड्यूल में, 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया। अब 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट चला गया, जितने भी भूमि सुधार हुए थे, हम टॉकिंग लैंड, तो उसको क्या हो, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल, तो वो वहाँ पर्पस काम कर रहा था, लेकिन इसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पर्पस तो वहाँ भी सॉल्व हो रहा था, भाई चैलेंजेबल नहीं है, और इतने जमींदार लोग थे, देखो पहले कितना सज्जन सिंह और ये सब जमींदार ही तो थे, ठीक है, शंकरी प्रसाद, ये जो केस हुआ था यही तो था। लेकिन वो भी लैंडलॉर्ड से साथ चीटिंग हुई है सर पहले उनके हाँ, बाद। ये मैं मानता हूँ इस बात को, मैं ये पर्सनली मैं बोल रहा हूँ पहले उसकी जमीन ले ली गई सर, उसको पहले इंडिया में मिला लिया गया, मर्जर करा लिया गया। लेकिन आप बीइंग एन IAS ऑफिसर बनने हुए या ब्यूरोक्रेट के हिसाब से सोचो, मैंने स्टेट की तरफ से सोचो, आप ही का जमीन है, आप ही बन गए IAS ऑफिसर, और आप सबसे पहले बोला कि आप अपने ही जमीन पे लगाइए ताला, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वो उस जगह को हम आप ही की डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव करना, जहाँ आपका सबसे ज़्यादा ज़मीन है, हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है? आप जमींदार के बेटे हैं, आपने IAS कंप्लीट किया, आप स्वयं अपने ही से ये काम स्टार्ट कीजिए, दूसरे पे क्यों कर रहे हैं? आपको तो बहुत ज़मीन है, आप डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन को दीजिए सरकार, तो वहाँ आप पीछे हट जाइएगा। सर अगर हम लोग कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो की बात करें तो उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और प्रॉपर्टी बोला था, तो उस केस में अगर हमारे पास मान लीजिए उसकी गवर्नमेंट आती है तो हमारे पास FR नहीं होगा राइट टू प्रॉपर्टी, तो ऐसे तो हमारी तो प्रॉपर्टी छीन के दे देंगे, तो वोट ही दो ना उनको। वो तो बड़ा ही इर्रिलेवेंट चीज़ था, वो बहुत इर्रिलेवेंट, ये कोई मतलब बनता है? और वो ऐसे, वो किसको खुश कर, अपीज करने के लिए, वो सब लोअर स्टार्टा को, हाँ वोट बैंक लोअर स्टार्टा को, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। सर उस केस में तो राइट टू प्रॉपर्टी FR हो जाना चाहिए। सर फंडामेंटल राइट होना चाहिए सर, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। सर अब तो होना चाहिए, नहीं होगा। वहीं इधर सड़क बनानी पड़ेगी, हाईवे बनानी पड़ेगी,
ठीक है, आप उस गाँव से गाँव कनेक्ट करने के लिए आप उनसे पहले कंसेंट लीजिए, अगर कंसेंट नहीं दे रहा तो आप जबरदस्ती किसी लेकिन को वो- जमीन छीन लीजिएगा। देखो हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, समझो पहले बात को, हम लोग ये ओपन डिस्कशन क्यों करते हैं ये सब चीज़। कल भी हम लोग का ओपन डिस्कशन हुआ था, सारे क्वेश्चंस को एम्पली डिस्कस किया था आपके सामने, तो उसमें मैं भी सीखता हूँ, आप लोग सीखते हैं। तो उसमें क्या है कि ये चैप्टर ही एक ऐसा, ये चैप्टर जो पॉलिटी का ये चैप्टर है ना, चाहे PSIR में पढ़ो या इसमें पढ़ो, ये बहुत सारे चैप्टर से लिंक्ड है इसका, फंडामेंटल राइट्स का, और इसमें कई तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते आ सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में। क्लियर है? तो सबसे बेहतरीन समझ जो आपको डेवलप करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रोच होना चाहिए पॉलिटी का, वो ये चैप्टर में पकड़ सबसे पहले बना लो। सबसे पहले इसमें 4 सेगमेंट है, समझो पहली बात को। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन ही नहीं इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू FR, पहला पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक्सेप्शंस टू FR। लिखते चलो, ये डायमेंशन के साथ पढ़ना है, और इसी डायमेंशन पे हम अगले इसमें संडे में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसी डायमेंशन पे, एक्सेप्शंस टू FR। दूसरा है सस्पेंशन ऑफ FR ड्यूरिंग इमरजेंसी। सस्पेंशन ऑफ FR ड्यूरिंग इमरजेंसी। एनफोर्समेंट ऑफ FR है ना। अभी पहले समझो, पहले क्या लिखवाया मैंने, एक्सेप्शन टू FR then suspension, पहला क्या लिखाया, एक्सेप्शन एक्सेप्शंस टू FR। ये अलग सेगमेंट में पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पहला डायमेंशन, इस चैप्टर का जो डायमेंशन है, जो कॉर्नर स्टोन्स जिसको कहते हैं, पहला ही हो गया। दूसरा मैंने क्या लिखाया, सस्पेंशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ FR ड्यूरिंग इमरजेंसी, दो अलग अलग चीज है। तीसरा है अमेंडेबिलिटी ऑफ FR, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है डिकॉटमी बिटवीन FR एंड DPSP। FR और DPSP में जो डिकॉटमी है, यानी इररिकंसिलिएशन जो है, क्या है सर? FR वर्सेस GFP में डिकॉटमी, DICHOTOMY। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर तब आपका कंप्लीट माना जाएगा जब पूरी कंसेप्शन इन चारों कॉर्नरस्टोन पे होगा तब। तो ये क्लास जो है, ये 2-3 क्लास इस पे डिवोटेड होगा, FR पे। क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, ये सब में ज़्यादा छोटा चैप्टर, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड होता है और कुछ एब्सोल्यूट को बोलते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन नहीं होता, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ? मैंने बोलते FR शुड बी एब्सोल्यूट, FR शुड बी क्वालिफाइड, दो अलग अलग डिबेट है। सर एब्सोल्यूट तो नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड ही होना चाहिए। क्या ओपिनियन आपका? एब्सोल्यूट कर देने का मतलब आप बताइए, आप बताइए। ऑफ कोर्स सर एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे दे आर नॉट एब्सोल्यूट तो क्या आर्गुमेंट देंगे आप? इफ यू वुड से FR इज नॉट या FR इज एब्सोल्यूट, तो लेट्स से FR इज नॉट एब्सोल्यूट, तो क्या आर्गुमेंट देंगे इसमें? एब्सोल्यूट नहीं है तो किसी सर्कमस्टांस में उनको रिजॉल्व सर डिसॉल्व कर सकते हैं। affirmative actions of affirmative actions of the government can सर, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन भी ये तो खुद से ही डिफाइन कर रहे हैं सर। अब 50% का जो कैप है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार लगा के रखा है कि 50% तक ही आप रिजर्वेशन आप ला सकते हैं। हो सकता था सुप्रीम कोर्ट 75% भी रख सकता था, कल वो करके ये भी जजमेंट आ जाए कि 75% आप कर दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता तो फिर आप अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे 75 कर दीजिएगा। ये तो डिफाइंड नहीं है ना सर, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से डिफाइंड नहीं है, आप खुद उसको ज़बरदस्ती इलेबोरेट किए जा रहे हैं अपने टर्म्स में, सिर्फ कंडीशंस को देखते हो कि लोकल कंडीशन क्या है, ग्राउंड का सिचुएशन क्या है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अभी बिगड़ जाए तो अभी 50% का कैप 70% पे चला जाएगा। दिस इज द अल्टीमेट फैक्ट, यही होता ही है। अच्छा, नहीं बोल रहे हैं नहीं ठीक है। नहीं, सही बात है। और नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि इसको एब्सोल्यूट नहीं के फेवर में देना है, आपको आर्गुमेंट देना है कि वाई दे आर नॉट, वाई दे शुड नॉट बी एब्सोल्यूट। जो आप बोल रहे हैं वाई दे शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं कि देश की जो हालात है, जो अमेंडमेंट हो रहा है इसके कारण, तो दे आर नॉट, दे शुड नॉट बी एब्सोल्यूट, व्यूइंग द और सेंसिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, सेंसिंग द अर्जेंसी, यही हो रहा है। अच्छा, इज इट अमेंडेबल? इट इज़ अमेंडेबल, अमेंडेबिलिटी इसकी है, लेकिन उसमें क्या बोलेंगे? विदाउट टचिंग दी बेसिक स्ट्रक्चर, विदाउट अफेक्टिंग दी बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है या नहीं है? तो वो भी जजमेंट से आया, लेकिन आउट ऑफ द वेरियस जजमेंट्स, ये भी हम लोग आउटलाइन दे रहे हैं, अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं किए। क्या है ये? आउटलाइन ऑफ एफआर। तो क्या क्या चीज़, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आएंगी और इसमें अपना पकड़ बनाइए। तो अब बोला कि जजमेंट के आधार पे हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब मान लो कि एसआर बोमई का एक केस है, तो एसआर बोमई की जजमेंट के बाद जो है सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश हो गया, है ना, सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश हो गया। अब या फिर कह लो कि रूल ऑफ लॉ है, जुडिशल रिव्यू है, तो ये सब तो जजमेंट के बाद ही आया है। या केशवानंद भारती है जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर आया है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ डालेंगे आप? मेरा प्रश्न ये, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक में नहीं आएगा? बिल्कुल। कैबिनेट सिस्टम आएगा ना, जुडिशल इंडिपेंडेंस आएगा ना, बिल्कुल आएगा। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी आएगी। नो सर, सर लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है ना सर, हाँ? कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। जब तक वो डिफाइन ना हो हाँ। तो कुछ नहीं। तो इसीलिए आपको, इसीलिए वो बिल्कुल, तो इसीलिए मैं क्यों आपसे ये निकलवाना चाह रहा हूँ कि जितना आप में आज से निकले उतने मेंस में मेथोडिकल राइटिंग और ज़्यादा हो गए। सिर्फ चुपचाप फैक्ट सुन लेने से क्लास का मतलब नहीं होता है, मेरा ये कहना है। सर बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करो कि ये डिस्कशन से कुछ आप ऐसा लेके जाओ कि आप मेंस के क्वेश्चन जब देखोगे एफआर में जैसे आते हैं कि पिछले 4 साल 5 साल पहले आए हैं, उसमें हाथ इंटरेस्ट के साथ जाए घर पे और लिखना शुरू कर दें, इतना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ये इसी सब्जेक्ट में नहीं ये सारे सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर इंटेलिंग इज नॉट क्लास, चैप्टर इज ऑल गिवन इन बुक्स। So what is, है कि नहीं, is all given. He is studying for second time. They are studying for second time. We have enough discuss this all thing. But why the very fact that they are again here is that they feel that, मैं इन लोगों की तरफ से सोचता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को फिर से पढ़ने आए, तो कुछ ऐसा डायमेंशन है जो कि समझना चाह रहा है ना। तो अब जैसे एब्सोल्यूट और हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब फिर क्या हुआ? Qualified का मतलब that there are certain criteria that should be met. If that अच्छा, यहीं पे क्राइटेरिया इसमें बताइए कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं? sir, विल दैट बी ए मोरालिटी? विल मोरालिटी नॉट अ क्राइटेरिया? यस, दैट विल बी क्राइटेरिया। विल सिक्योरिटी बी क्राइटेरिया? isn't it? पब्लिक मोरालिटी, ऑर्डर इन स्टेट, ऑर्डर का मतलब हार्मोनी से, ऑर्डर इन, तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। और सर वन पॉइंट अगेंस्ट क्वालिफाइड फंडामेंटल, अगर ऐसे क्राइटेरिया डालेंगे तो वो फंडामेंटल ही नहीं रहेगा। इनका भी कहना ठीक है कि एक पॉइंट अगर ऐसा ला दें, ऐसे कितने ला सकते हैं हम लोग? लेकिन 3 को, पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, इनको ऐड किया गया बाद में। डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी, ऑर्डर, ये सारे तो ये इस्टेब्लिश्ड है। और सर जैसे नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इनका कहना सही, चूँकि राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करो तो जो बात क्या पहले, जैसे ये बोल रहे कि क्या डिस्कशन में पहले समझ में नहीं आता? बिल्कुल समझ में आता, प्राइवेसी होना चाहिए, लेकिन उसको नहीं अमली जामा पहनाया गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार देख लो, बेसिक है,
क्यों इतना दे? 86th अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया, अब तक ध्यान नहीं था लोगों का। 2047 के पहले 46 में 1946 में स्टैब्लिश हुआ, उसके वहाँ से कोई 2 साल 11 महीना 18 दिन इसी में रह गए, पता नहीं चला इन लोगों को। एजुकेशन हाँ। वाला पार्ट सर डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में सर इंक्लूडेड तो था ना। बताओ, शिक्षा जो कि बेसिक है, बेसिक राइट है, उसको डीपीएसपी में, बट सर आप जो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क थे अगर उनकी डिबेट्स को सुने तो उनसे ये पता लगता है कि उन्होंने कहा कि आपको, क्योंकि स्टेट इज नॉट टू मच एबल टू लाइक अफोर्ड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है, 14 ईयर ऑफ एज, दैट्स व्हाई दे पुट दैट पार्ट like to the DPSC. When state became able to give these rights, that's why they shifted that part of the constitution to the DPS fundamental rights. तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टिल 11वां फंडामेंटल ड्यूटी आपने पेरेंट्स पे जिम्मेदारी दे दी। आपने अपने इस पे तो नहीं ली, वहाँ पे बना दिया, उसको भी एक डायमेंशन अलग दे दिया, पेरेंट्स की अब ये जिम्मेदारी होगी। तो पेरेंट्स को आप कैसे समझ लें कि वो एफोर्डेबल है? अब आप अभी तक क्या बात कर रहे थे? ये सरकार की बात कर रहे थे, अब क्या बोले पेरेंट्स में, क्योंकि 51A 11A जो है उसमें ये बात किया गया। तो वो बात तो ठीक है, एक तरफ से सरकार की सिंक्रोनाइज करने के लिए ऐसा किया गया है कि डीपी अगर फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू एजुकेशन, इसका मतलब है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट विल प्रोवाइड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। पेरेंट्स आर आल्सो लाइक ड्यूटीफुल टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। तो वहाँ पे पेरेंट्स को भी ये बताया गया कि दोनों तरफ से आपको स्टेप लेंगे तो सर एक प्रोडक्टिव पीरियड निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है 86 के बाद। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद एक और चेंजेस आए 45th आर्टिकल में, जो डीपीएसपी में है, वो अर्ली एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड। तो 3 तरह से एड्रेस किया गया है एजुकेशन को, एक एफडी में चेंज लाके, एक डीपीएसपी में चेंज लाके, और एक, लेकिन पर्पस तीनों का एक ही यही है कि जो बेस है मास बेस लिटरेट बने और एफोर्डेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो। एफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो कैसे? क्योंकि डीपीएसपी में इसका पार्ट है, तो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, तो वहाँ पे स्टेट की भूमिका, वहाँ नागरिक हट गए, वहाँ क्या हुआ, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में चल रहा है। नागरिक तो फंडामेंटल राइट तक थे ना, अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट है कि कानून स्टेट ऐसा बनाए। दीज आर द व्हाट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सरकार यहाँ पे सिटीजन नहीं है, तो कौन कौन है, संविधान और स्टेट। ठीक है, तो स्टेट को इंस्ट्रक्शन पास ऑन किया गया है कि आप ऐसे कानून, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, इसलिए तो आप बताइएगा, इसलिए इन्फोर्सेबल है नहीं ये चीज़, है कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि फंडामेंटल राइट्स, अगर मान लीजिए बिल ऑफ, अच्छा इसका ओरिजिन क्या है? बिल ऑफ राइट्स कुछ लोग मानते हैं, अमेरिकन के मैग्ना कार्टा को मानते हैं। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्यों लागू क्यों मानते हैं लोग, कुछ आइडिया? तो 1215 में मैग्ना कार्टा आया था, तो उसमें कुछ इंग्लैंड में कुछ ऐसा था, उसमें जैसे ये तो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स एक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ बिल ऑफ राइट्स, यूएन बाद में लिया इस चीज़ को। ठीक है, वो चार्टर था, एक राइट्स सिटीजन के लिए चार्टर था 1215 में, सर्टेन राइट्स वर लाइक गिवन टू द सब्जेक्ट्स एज ए सिटीजन बाय द इंग्लैंड किंग जेम्स। एक्चुअली वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या है, मोनार्की जब ख़त्म हुआ और मोनार्की चेंज होके जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है, तो वहाँ पे चेंजेस आए। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हम लोग करते हैं, जो कैबिनेट सिस्टम उन्होंने लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया वहाँ से, तो उसमें एश्योर्ड है कि भाई वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कलमबद्ध किए, लेकिन है चीज़, आशय वही है, भाव वही है, इमोटिव एलिमेंट वही है उसमें।
ठीक है। सर, हाँ जैसे इंडिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हाँ और यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक तो ये कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड एक सर्टेन हाँ, फॉर्म में, हाँ। जबकि यूके के पास सर्टेन एक मतलब कोडिफाइड इंटीग्रेटेड नहीं है, वो स्टैट्यूट्स है, जैसे पार्लियामेंट है इम्पावर्ड लाइक स्टैट्यूट्स के फॉर्म है, प्रेसिडेंट के फॉर्म है, बायलॉज के फॉर्म में है, ठीक है, जुडिशल डिसीजंस के फॉर्म में है, तो उसको वो लेकर मान के चलता है। बट दे आर नॉट इन इंटीग्रेटेड फॉर्म। दैट इज नॉट इंटीग्रेटेड फॉर्म। सर मेरा डाउट है कि जैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो यूके को कैसे एम्पावर करता है टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, और इंडिया के पास इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया इज अंडर डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री। भाई वो एक तो 1789 की बात आप कर रहे हैं, अमेरिकन वार 1776 कब हुआ था? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, और ये 1946, तो 100-200 साल तो पहले ही पीछे हो गया उस हिसाब से, क्लियर है। और वहाँ का कॉन्टेक्स्ट यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं, क्योंकि आप रिटन सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल फीचर, जहाँ की सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 2 सेट्स ऑफ पावर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट पास रहेगा, एक इसके पास रहेगा, बाइकैमरलिज्म रहेगा, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, मिक्सचर किए। अब क्या यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, क्लियर है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, तो उसको ख़त्म करने की बात करते हैं लोग, लेकिन ये भी बात करते हैं कि भाई आप हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को भी इनवाइट करते हैं, ठीक है। FIs, FDIs, ये सब क्या है, ये सब कैपिटलिज्म अप्रोच का बात है। तो डेवलपमेंट समग्र दृष्टिकोण से अगर आप देखें, होलिस्टिक डेवलपमेंट में तो एक रास्ता नहीं संभवता, और इतनी वास्ट पॉपुलेशन में, वहाँ का कितना 1/3 पॉपुलेशन यहाँ है, US का पॉपुलेशन का यहाँ का 1/3 वहाँ पे है, ठीक है, और एरिया 3 टाइम्स ज़्यादा है वहाँ, ऐसे देखिए एरिया वहाँ 3 टाइम्स ज़्यादा है और पॉपुलेशन 1/3 है। तो आप उससे और दे हैव गॉट इनफ टाइम टू थिंक ऑन प्लानिंग पार्ट, प्लानिंग किया उसने, उसके फिर डेवलप साइंटिफिक आउटलुक पहले ज़्यादा चल गया वहाँ पे, ठीक है। साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ वहाँ पे। यहाँ पे प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर बाद में आया, वहाँ बहुत पहले से वहाँ का और एजुकेशन सेक्टर वहाँ। अच्छा यहाँ एक बात और भी है, आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ सब कुछ नहीं है। वहाँ जो प्रोफेसर होते हैं, जो आई मीन नो ऑफ पर्सन हु फ्रॉम माई ओन फैमिली हु वेंट टू स्टैनफोर्ड एंड दे आर लिविंग लाइविश लाइफ, बहुत आराम, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आराम से करना, बहुत पसंदीदा जीवन है वहाँ के लोगों के लिए। सॉफ्टवेयर का प्रोफेशनल का तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा वहाँ पे एजुकेशनिस्ट का जीवन है, ये ध्यान रखेंगे। यूरोप में भी खास करके एजुकेशनिस्ट का पूछ यूरोप और इसमें ज़्यादा है, डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा है, और वहाँ लाइफ भी उनकी अच्छी है, तो इसलिए लोग इन्फ्लोज भी ज़्यादा है यहाँ से। जबकि सरकार की तरफ से सोचो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चला भी रही है, गवर्नेंस भी चला रही है, कोशिश भी कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान कम बड़ा बात नहीं है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कब का था? बान की मून जो UN का सेक्रेटरी जनरल था, उसके SDGs में था, MDGs में था, बाद में जिसको SDGs भी कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो ये तो और दूसरी बात, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन लोगों को सेकेंड 5 ईयर प्लान में, उसके एजेंडा बंद हो गया, क्योंकि वो थॉट स्टेट्समैनशिप तो कोई फिर रहा नहीं कांग्रेस के पास। और कितना 47 से 50-60 साल तो वही लोग रूल किए हैं। उसके बाद फिर इंडिया के साथ कुछ सर्कमस्टांस भी वैसा रहा, वॉर्स भी हुए, ठीक है। और इसके फिर इधर मॉडर्न में देख लो तो स्कैम्स और ये सब काफ़ी, तो ये सब हाँ वो। अच्छा, अब कोई पॉलिटिशियन ये एजेंडा लेके आया कि हम पूरे संविधान को ही बदलना चाहते हैं, तो क्या आप उसके फेवर में होंगे? सर हम लोग सिर्फ यही डायमेंशन क्यों एक्सप्लोर करते हैं सर? अगर उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर रही है सर? हाँ, तभी कहती है सर सुप्रीम कोर्ट इज इंटाइटल्ड टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इंटरप्रिटेशन कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, सो वी कैन नॉट ब्लेम सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज इंटरप्रेटिंग इन अदर वे एंड इट इज चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ द थिंग दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं देखो एक बात, ये बाद में तय होता है। देखो सबसे पहले
कॉन्स्टिट्यूशन पहले समझो, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को स्टैब्लिश करता है, उसके बाद उसके पावर्स और लिमिटेशंस तय करता है, अब बाद में उसका इंटर रिलेशनशिप्स। क्लियर है? अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये व्यवस्था बाद में आया। तो अब जब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन में चेंज होते चला गया, तो और आप उसकी सर्वोच्च सुप्रीमेसी को पे ये कर रहे हैं, तो दोनों बात सही है, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर एंड विथ वैरिंग इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो चेंजिंग, इवॉल्विंग ओवर टाइम। ठीक है, हाँ हाँ, इट इज इवॉल्विंग। लेकिन दूसरा रास्ता ये नहीं था कि पूरे संविधान को बदल देना, ये भी समझोगे। ये बदलाव जो भी होगा वो ऐसे ही हो सकता है, जो ये पूरे रूल बुक को पूरा न्यू रूल बुक, अब ये कोड ऑफ वेजेस 44 लेबर लॉ था, मैं तो काम किया हूँ फैक्ट्री एक्ट में, 44 लेबर लॉ था, अब उसको कोड ऑफ लेबर, कोड ऑफ वेजेस के में कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। दूसरा आपका पूरा लॉ ही CRPC CPC को चेंज किया। तो ये सब क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें। ठीक है, सेम ऑफेंस के अलग-अलग हाई कोर्ट्स अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस देते हैं। हाँ ये तो है, इसमें तो मत नहीं, इसमें तो ये सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर बहुत बेसिक सा चीज़ ये देखा जाए कि जो चीज़ गोलकनाथ में आप कह रहे हैं कि प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, तो बाद में आप ही उसको कैसे कह रहे हैं कि इट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट। 10-13 साल पहले क्या है कि नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, 13 साल के बाद वो इंटीग्रल कैसे होगी, और उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि अब ये जो है यही फाइनल है। हाँ। क्यों पिछला वाला आपका जजमेंट किसी और का था क्या? 13 साल पहले का भी जजमेंट नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ही था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था चंपकम द्वैराजम के पहले वाला। ठीक है, तो उसमें था कि इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदम भारती में स्टार्ट हुआ, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिश, वहाँ पे हुआ है। तो 73 में जबकि आया ये जजमेंट, और इसमें 73 में आया वो जजमेंट, और उसके बाद देखो 76 में नए वर्ड्स अब ऐड हुए, 76 में नए वर्ड्स अब ऐड, यानी उसको एक इनकरेजमेंट मिला कि हम यहाँ अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 73 में ही बेसिक फीचर्स डिफाइन हो गया था। तो 3 शब्द आने से वो बेसिक फीचर्स डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो और क्या हो रहा है, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड हो रहा है, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड हो रहा है। ठीक है, क्यों? अब कैसे? अब इंटीग्रिटी में क्या श्योर किया भाई, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन। ठीक है, उसमें और ऐड कर दिया गया। सोशलिस्ट से इतने चेंजेस जो बताए हम लोग, सोशलिस्ट में चेंज हो गया। सेकुलरिज्म, इंडिया में चूंकि इतने वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है, तो उसमें सेकुलरिज्म को लाना ही था, बगैर सेकुलरिज्म लाए हुए कर चल नहीं सकते थे। ठीक, किसको पकड़ेंगे? अगर हम हिंदू स्टेट बना सकते, नहीं बना सकते हैं हिंदू स्टेट। हिंदू स्टेट देखो, नेपाल हिंदू स्टेट कितना, कल भी उसका क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप इधर बदल रहा है, डिफरिंग। तो अब ये स्टैब्लिश हो गया है कि डेमोक्रेसी इज द ओनली वे इन द ईयर्स टू कंटिन्यू। ठीक, बाय कम्युनिस्ट रेजिम वी कैन नॉट डू दैट, एंड ऑल्सो डिक्टेटरशिप विल एवर बी चैलेंज्ड। We have to rely on the judgment of the courts. We have to repose faith in them. इस तरह से चलना पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। And most important, we the people has to be strong and committed leadership, committed political leadership. ये बहुत important है। वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन कल हो करके अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के CJI फिर ये जजमेंट दे रहे हैं कि नाउ प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द फाइनल जजमेंट, तो अब उसको कैसे कहाँ कोई चैलेंज कर सकेगा? फिर तो वही फाइनल इंटरप्रेट तो वही कर रहे हैं सर। अगर कल लोग यही बात कह रहे हैं, गोलकनाथ के जजमेंट को रिपीट कर रहे हैं, तो फिर तब क्या होगा सर? होने को हो सकता है, हाँ, वी कैन नॉट डिनाई, ये हो सकता है, लेकिन उसके पास लॉजिक होगा ना कन्विंस करने के लिए। प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे अपनी जज कुछ भी बोल के चला गया, पिछले तो बार साइड वाले पहले लॉजिक बोल चुके हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है सर, लेकिन सर, प्रूव करना जैसे आप लोग वकील हैं, हमने क्या बोला था, यूपीएससी क्या है, इवैल्यूएटर, वो जज है, और आप लोग क्या हैं, वकील हैं। बेस्ट पॉसिबल वे में आप आंसर्स लिखेंगे तो वो जज करेगा। तो वो आप ऐसा उपाय ढूंढिए, you have to search for that methodology of writing answers, which we will discuss in the class in due course, which will fit the bill of UPSC. Simple. हम लोग यहाँ पे एजुकेशनिस्ट बनने नहीं आए,
रिसर्च स्कॉलर बनने नहीं, हमें वो करना है कि यूपीएससी कम्पीट करे। और भी खास करके पॉलिटी में जिसकी शुरुआत धागा प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक चलती है। पॉलिटिकल साइंस PSIR is the only optional that is relevant from the day one, I mean from the day of the prelims till the interview. इससे बड़ा कोई नहीं धागा है, इतना बड़ा धागा ये है PSIR का धागा। मैंने आई एम नॉट स्ट्रेसिंग यू टू थिंक ऑफ PSIR एज एन ऑप्शनल, बट आई एम थिंकिंग PSIR का ये। अच्छा तो ये हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से। हम लोग जैसे ओवरऑल FR का अभी किया, हम लोग विल स्टार्ट द चैप्टर टुमारो ऑनवर्ड। तो एक टास्क आप लोग लिख लीजिए पहले, जो होमवर्क बना के लाएंगे आप लोग। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13, ये स्वयं से पढ़िएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 13, और ब्रैकेट में लिखिए वाई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 constitutional amendments are not laws. Why, according to Article 13, constitutional amendments are not laws. ये होमवर्क है, आज जाके थोड़ा इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए सेल्फ, देन विल delve deep into it tomorrow. ठीक है? Any further question, anyone? We have 5 to 10 minutes. 5 to 6 minutes, I mean, it isn't over. बता सकते, बोल सकते। You to start. Yes, any question? Have you heard? They are not well. अच्छा, you are not well. Okay, okay. Please do feel free to ask relevant questions. हाँ, आपका लास्ट अच्छा, ये जो PM बख्शी की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने देखा है वो किताब, PM बख्शी की किताब? तो PM बख्शी की किताब को भी थोड़ा रेफर कीजिएगा आप लोग। PM बख्शी, खास करके FR के मामले में, ठीक है? एंड DD बसु, दुर्गादास बसु, नाम सुना है दुर्गादास बसु का, DD बसु का? Very popular book. हाँ? Very popular book. Very popular book. Very popular among UPSC aspirants, though not widely read because of the cumbersome English. हाँ, cumbersome English, उसके इंग्लिश थोड़ी cumbersome है। तो कोई भी चीज़ जो आसान हो वो पॉपुलर हो जाता है। नोकिया फीचर्स क्या था, बहुत ही साधारण था, तो ग्लोबलाइज्ड हो गया। लेकिन पैनासोनिक उससे ज़्यादा दिमाग लगा होगा उसके, लेकिन आम आदमी के समझ में उसके फीचर्स नहीं आया, तो उसका लिमिटेड सेल हुआ। तो जो भी चीज़, इसलिए लक्ष्मीकांत जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए। DD बसु ओरिजिनली बहुत ही अच्छी किताब है, उनकी क्वालिफिकेशन का भी देखना DD बसु की, वो LLD से स्टार्ट ही होता है क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट ऑफ लॉ से, इतना सम्मान मिले हैं उतने। तो ये आप उसे ही मोटिवेटेड हो जाएंगे। सिर्फ क्वालिफिकेशन और वो पूरा एक पन्ना ही है उसका, क्वालिफिकेशन का पन्ना, फर्स्ट पन्ना उसी स्टार्ट होता है। तो लोग उसको, लेकिन वही है कि वो उसको जज भी पढ़ते हैं, उसको वकील भी पढ़ते हैं, सेम बुक UPSC एस्पिरेंट्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो भी पढ़ते हैं उस किताब को। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।